Hello. Good afternoon, Yes. Good noon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Let's start with the reading part. I've sent you a paper. First the words and then the sentences. Okay, please start. Ma'am, this one future tense. Yeah, it's given them like this. The words are given. Please read out. First is punishing. 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 अच्छा words. हाँ, words पहले पढ़िए. Okay ma'am. Punishing. Wrong. Great. Wrong. Following. Great. Grateful. Honesty. Survive. It's Positive. survive. Survive. R नहीं है बीच में. Survive. Okay ma'am. Yes. Survive. Positive. Positively. 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 Influence. Responsibility. Appropriate. 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 Yes. Appropriate. Sonal, please read out. Smart. Option. First say Third line. Option. option, questions, observe, Question. Inculcated. included, super, smart. Yes. Topic. Smart. Topic, letters, Determine. young, cranky, Simple. simple. So Aware. aware, response, Respect. respect. Yes. Geetu ji, आप बोलो. Respect. Ma'am, fair, where स्टार्टिंग पहले ये सेंटेंस वर्ड्स बोलते हैं. Punishing. wrong, that's following Deeds, madam. deeds, following great, grateful, Java, Honesty. honesty, Survive. Positively. influence, responsibility, up to appropriate, option, question, Yes. observe, नीतू जी आप बोलो. नीतू जी. Yes, ma'am. हाँ पढ़िए. Observe, inculcate, super smart. Topic, determine, young, simple, aware. And aware Away. नहीं. No, away ही बोला मैंने मैम. Last वाला नहीं. Away. Respect. Next. First sentence पढ़िए. नीतू जी आप ही पढ़िए. Java is an island of Indonesia. My grandmother and I पूरा नहीं. were good friends. Next. आगे पढ़िए. रीड करिए. मैम नेक्स्ट पेज पे ना. She said her morning. मैम पूरा है ही नहीं. राइट साइड में पूरा कटा मैम हुआ वो है. नंबर आगे आ गया कि नंबर 1 नंबर 2 आपके पास कौन सा है? my grandmother वाला है सेकंड नंबर, उसके नीचे हाँ, दूसरा my पेज है. grandmother and I were good friends. Yes. आगे my parents. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city. Went to live in the city. Yes. सोनल जी आप बोलिए. सोनल जी. Yes, ma'am. She used to walk me up. Wake. उठाना. Wake me up. Wake me up
मैम आपके बाद नहीं दिख रहा है. In the morning, in the morning. In the morning. She paid her morning prayer. Prayer. In Is tomorrow. monotonous manner. Monotonous क्या होता है? Monotonous क्या होता है बताइए? Pardon? एक रास्ता मतलब बोरिंग थोड़ा. नहीं, बोरिंग नहीं होता, मोनोटोनस होता है मैम. जैसे आप पाठ करते हो, मान लो आपने गीता का पाठ किया, जो आप इतने सालों से आरती बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो आपको याद हो जाती है वो, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आप सुबह ही शुरू हो जाओगे, जैसे आपको रटी होती है, तो वो मोनोटोनस मैनर यानी एक रास्ता. हाँ, एक रस से बोलते जाते. यस, चिल्ड्रन कैन बी easily molded. Yes. गीतू जी आप पढ़ो. Values are easily to Instill in a child. Instill in a child. Nowadays, children are very smart. Nowadays, children are very smart. Parents should be role model for their children. Children are quick learners and absorb anything around them. Very good. It is imperative to teach your a few basic value in order to survive. In order to survive. Today we are going to do future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense उसके लिए आता है जब हम कोई बात पता चलती है कि नियर फ्यूचर में पूरी होने वाली है. जैसे मेट्रो स्टेशन की जो कंस्ट्रक्शन है या ये वाली रोड रिसेंटली अभी फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है. ओके, तो इसमें आप लोग विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. यस मैम. जैसे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल बी कंप्लीटेड हिज रिसर्च. भाई इस साल के अंत तक उसकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, या इस साल के अंत तक के मेट्रो स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा. तो उसमें आपने क्या यूज करना है? will, shall, will, have plus past participle. जैसे फर्स्ट सेंटेंस बोलिए. they will have completed all the assignment by next Very week. good, very good. They will have completed all the assignments by next week. Next, Sonal आप बोलो. Sonal. By the time the boss comes, the meeting and हाँ, will have कैसे बोलोगे नीतू, बताओ इनको. will have लगेगा. The meeting will have ended. The meeting will have ended. सोनल बोलो इनके साथ. Yes ma'am, the meeting will have the meeting will have in the Ended. morning. कहाँ बोल रहे हो आप? चलिए थर्ड मैम वाला नहीं बोलिए. समझ में यार, समझ में आपको नहीं आ रहा है फ्यूचर यार. मैंने आपको बता तो दिया है कि ये आप फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हो. फ्यूचर परफेक्ट करने में आपको शैल, विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर. चलिए आप हाँ जी नमिता जी आप बोलो. Yes, ma'am. By the time the boss comes, the meeting will have ended. Will have
they will have finished the work by the time the inspection team arrives tomorrow. वेरी गुड। गीतू जी आप बोलो। Will you have not wasted a whole year by then? नेक्स्ट। The flight will have taken off by the time we reach the वी airport. रीच एयरपोर्ट। वेरी Reach. गुड। नीतू जी आप बोलिए। Yes, ma'am. By the time rain sets in, the raging fire will have destroyed over 2,000 hectares of forest. यस नेक्स्ट। Will विल द क्लोथ्स have हैव ड्राइड by the time I return? बाय द टाइम आई रिटर्न। ये आप लोगों को सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इतने रटने वाली चीज नहीं है, ये कोई रटने वाली नहीं है। बोलचाल की भाषा में आप ये नहीं देखते हो कि हम परफेक्ट बोल रहे हैं या कॉन्टिन्यूस टेंस बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैम Yes, आई थिंक सोनल को है ना स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है। यस कहाँ मैम, नहीं, एक्चुअली मुझे सोनल पता को ही नहीं कहाँ पे क्या होता है, इनको स्टार्टिंग से ही इनको नहीं पता ही नहीं है एक्चुअली। पता है क्या है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, उनको नहीं पता ये चीजें, तो मैं देती तो हूँ उनको, मगर आजकल हम टेंसेस कर रहे हैं इसलिए मैं उनको नहीं भेज पा रही हूँ। ओके ओके मैम। Ma'am, I have a question. यस। Ma'am, फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव और हैज का इस्तेमाल वैसे होता है जैसे हैज लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. इसमें हैव होता है, हैव। No, तो ma'am, if the subject is suppose he will Singular. have आएगा या he will has आएगा? नहीं ही विल हैज नहीं आएगा, ही विल हैव। यहाँ सबके अच्छा, साथ always we use have. हैव ही आएगा, हैव आएगा मैम, इसमें हैज नहीं आएगा। Okay मैम, बस। ठीक है। अच्छा, आज आप किसी अपने नोन की कोई पर्सनालिटी के बारे में बताइए। गीतू जी आप बताइए। Yes. Yes, ma'am. There are two superhero in my life. अच्छा। One is my Yes. father. One is my father, and second one is my husband. They both have a lot in common. Both are ambitious, diligent, considered, sophisticated, and sophisticated. But my father is not fuzzy, and my husband little some. And my husband also have observant and good judgment. Both are not amiable. My husband have learned to be amiable after marriage. That's it. नेक्स्ट नीतू मैम आप बताइए कुछ। Ma'am, actually I didn't write because I couldn't get time of तो ये for तो my. अच्छी बात है ना, गीतू जी ने लिखा है तो मैं मना करने वाली थी, लिखना नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड्स यूज करने हैं। अब लिखा है तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, व्हेन कॉन्वर्सेशन में इफ यू राइट इट तो आप पढ़ते ही रह जाओगे। ओके, आप अपने अंदर से कुछ निकालिए, ये वाले वर्ड्स रखिए, अपना कुछ ना कुछ बोलते रहिए। Okay, in my life there is only one hero. He is my father. He is very sophisticated person because he want to help to everyone. Whoever who is in suffering any problem, he wants to help to everyone of by mentally, physically, or economically also. Financially Also, and I have never seen this type of person in my life
in my whole life. Still अभी तक still I am 39 years old, but I have never seen. And I want to also my son will become like my father. And he never get angry to everyone. Always he handle any problem very easily and very ना शांति पूर्वक से करते हैं. शांति पूर्वक Very, he does it peacefully. He does it peacefully. He doesn't panic. he doesn't panic. But sometimes position is very condition is very critical, so he will be angry. He gets angry. Yes. He gets angry. Sonal ji, आप बोलो जरा. My life favorite person is my husband. My husband is very smart and intelligent. He is like always eating food and new clothes wear. My husband is always care for me and my son. He always all my problem solution. He is never angry with my son and me. And I always help me and my son Yes. enough, ma'am. Enough. Namita ma'am, आप बोलिए. Yes, ma'am. My hero of my life is my father. My father is not is passed away before many years, but he was very strict and for some particular things, but otherwise he was very lenient and very affectionate with me and my all siblings, and he determined and hardworking, and he always take care of he always took care of us. And when I was young, I am very fussy and stubborn, but he always treated me with affection, and he is amiable and determined, and he wanted to us that we also adopt these qualities if we want to become successful in our life. He was even tempered. He never get angry. He never got angry, and if नहीं, a आपने situation tempered क्या बोला है? अभी tempered में क्या बोला है? He was even tempered. even. Yes, ma'am. I read on somewhere, read this word somewhere. Even tempered means shant, person who never get angry. Yes, ma'am. It is even. even. Then it's Yes, okay. ma'am. Even. Yes, He even. was even tempered, and he never got angry when we made mischiefs. He always sorted out our quarrel with calmly, because we are 3 siblings. So and he was my real hero, and I always missed him a lot. Very good. All of you tried it. But here, you have just used the words as it is. आप इसमें थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है कि जितने मैंने दिए उतने यूज करने थे. जितने मैंने दिए थे उतने यूज करने थे. But you would have formed it in a better way. इसको एक better way में भी form कर सकते थे. I know for ladies, their husband, their sons, and their father are always hero. Always hero. So you can say, like you can say, my husband
I mean, although he is very, आप कह सकते हो, he is very open-minded. He is very open-minded. He had a very pleasing personality. आप अपने भी use कर सकते हो. He is open-minded. He doesn't mind. He doesn't mind are wearing modern dresses, but the dresses should be decent. Dresses should be open-minded. किस वे में होते हैं? Open-minded किस वे में होते हैं? मतलब person who never who don't control our action and we can do whatever we. I mean, देखिए, एक पहले एक बहुत अच्छी बात भी करनी है और वो भी करनी है. You are saying like my husband is open-minded. Open-minded. He loves modern dresses, but the dresses should be decent. मॉडर्न ड्रेसेस को पसंद करते हैं, मगर ड्रेसेस डिसेंट भी होनी चाहिए. आजकल आप जैसे देखते हो, अब आपकी बेटियां हैं या कुछ हैं, व्हाटएवर दे वेयर, आपको आप ध्यान तो रखते हो ना ड्रेसेस में. ये थोड़ी है कि सब पहन रहे हैं तो ये भी पहने. मेरी बात समझ नहीं आ रही. आई एम नॉट क्लियर. मतलब दे आर ओपन माइंडेड इन मेनी थिंग्स. Like they want the children to come forward. They want the children to participate in each and everything. But late night parties are not acceptable. अब मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ? Yes, ma'am. ओपन माइंडेड के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं. कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव. आप अब ओपन माइंडेड कह रहे हो. ओपन माइंडेड में ड्रेसेस तो मॉडर्न पसंद करते हैं, मगर डिसेंट होनी चाहिए. Yes, ma'am. आप अपने बच्चों को अलाउ तो करते हो कि गो एनीवे, यू कैन पार्टी इट, यू कैन टॉक विद एनीबॉडी, एवरीथिंग, बट देन आल्सो यू चेक लेट नाइट पार्टीज आर नॉट एक्सेप्टेड. एक अच्छी फैमिलीज में तो नहीं एक्सेप्टेड होती कि गर्ल इज कमिंग एट 2 AM in the morning. Yes, ma'am. Some conditions always be applied. Yeah, that's what I'm saying कि आप अच्छी बातें तो बता रहे हो, मगर अच्छी बातों का साथ में वो भी बताओ ना कि मॉडर्न ड्रेसेस आर लाइक, बट दे शुड बी डिसेंट. Ma'am, I think some Children one phrases is there of इसके बारे में एक phrases है कि किसी की भी अति नहीं होनी चाहिए. Yeah, excess of everything is bad. Excess of everything is bad. तो आप Yes. ओपन माइंडेड हैं. ओपन माइंडेड में क्या हो गया कि आप ये चीजें पसंद करते हो, लेटेस्ट पार्टीज पसंद करते हो, पर लेट नाइट बच्चों को अकेले नहीं जाने देते. यू डोंट अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो. तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है. Yes, ठीक है. ma'am. अच्छा. Yes, ma'am. फिर आप लिख सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो, तो ही इज वेरी diligent. He works very hard. He works very hard for our living, for our standard living. आप आजकल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो ना. Yes, ma'am. वैसे देखा जाए दाल चावल तो सभी खा लेंगे, मगर हम लोग क्यों भाग रहे हैं? टू मेंटेन आवर Standard. status, to maintain our standard. Yes, ma'am. Diligent, we are working hard to maintain our standard. सभी को चाहिए. नहीं मेंटेन करोगे तो you are backward then. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट है कंसिडरेट में आ गया कि बड़े दयालु हैं, मददगार हैं. ही इज वेरी कंसिडरेट. ओके. Yes, ma'am. बट इन रिटर्न व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? इन रिटर्न वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि वी शुड बी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, विद एटिकेट्स. अगर आप में एटिकेट्स हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो वो भी कंसिडरेट रहेंगे और मदद करेंगे आपकी. इफ यू आर चूजिंग द राइट पाथ, तभी तो मदद करेंगे. Yes, ma'am. क्लियर? मैम बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं. हाँ, they take benefit of such situation. क्योंकि बोलेंगे ही नहीं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता. I mean, everything should have limit. Now, अभी आप कह रहे हो ऑब्जर्वेंट. ऑब्जर्वेंट क्या होता है?
ऑब्जर्वेंट इज वेरी गुड। ये थोड़ी है घर में कैलेंडर लगाया तो उसको ऑब्जर्व कर लिया। अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ऑब्जर्वेंट होते हैं कि उन्हें अच्छी और बुरी चीजों का फटाफट पता चल जाता है। दे आर ऑब्जर्वेंट। Yes, ma'am. They make out when where something is going wrong. They make is going wrong. हम लोग नहीं कहते जब किसी के बच्चे बदतमीजी करते हैं या वाइफ बदतमीजी करती है तो हम कहते हैं घर वाले अंधे हो गए थे क्या, मतलब उनको दिखता नहीं है। तो ऑब्जर्वेंट मीन्स दे मेक आउट वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है। Okay, ma'am. नॉन जजमेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को देख के अपना फटाफट विचार देना, ये तो खराब है, ये तो ऐसा है, ये तो कहना है। किसी के पास एक बार सिचुएशन गलत हो गई तो एक हम जजमेंटल हो जाते हैं, मगर हो सकता है उस वक्त उसकी सिचुएशन ठीक ना हो, वो गुस्से में हो। ठीक है। तो बीइंग नॉन जजमेंटल इज ऑल्सो गुड। बीइंग नॉन जजमेंटल इज ऑल्सो गुड। अब आपका पड़ोसी है, कभी गुस्से में हो शुरू में और उसने कोई मिसबिहेव किया तो आप मतलब इस चीज को लेके ही बैठ जाओ कि नहीं, पर हो सकता है उस वक्त उसकी सिचुएशन 2-3 बार तो देखना चाहिए ना। ठीक है। तो नॉन जजमेंटल इस वे से है। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड सब में है। इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इन सोसाइटी, इन द फैमिली। सिर्फ बाहर जाके सोफिस्टिकेटेड होना इज नथिंग। अपनी फैमिली के साथ तभी तो चाहिए ना। द वे यू टॉक, द वे, ऐसा थोड़ी है कि अपने फैमिली के साथ आप जैसे मर्जी बोलो, बाहर जाके हाँ जी बहुत सोफिस्टिकेटेड, दैट्स आल्सो नॉट गुड। Ma'am, sophisticated, it's allowed for children. हाँ सोफिस्टिकेटेड, ये बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों क्यों के नहीं, ऊपर भी तो आता है ना मैम। बिल्कुल। सच अ सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड। आपको बच्चा है, अब आपको कोई बच्चा मिल जाए, वो आपको प्यार से, कई बच्चे तो जिद्दी होते हैं, नमस्ते ही नहीं करते, मतलब उनको आपको कहना पड़ता है बेटा आंटी आइए नमस्ते करो, बेटा फलाना आया इसको ये करो। मतलब कई बच्चे होते हैं वो फॉरवर्ड होके नमस्ते करते हैं और बड़े तमीज से बैठते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यू एडमायर ऑल दीज थिंग्स। आप एडमायर करते हो ना इन चीजों को। कि देखो कितना वेल बिहेव्ड बच्चा है, कितना सोफिस्टिकेटेड बच्चा है। अब कोई बच्चा आए आपके पैर छू ले एकदम, या आपको जब भी पाले, तो आपको वैसे ही कितना प्यार आएगा उस बच्चे पे, क्या नहीं? Yes, ma'am. आपको अच्छा लगेगा ना। एमिएबल होता है मिलनसार। तो मिलनसार होता है कि इज वेरी एमिएबल। अभी एक मैम ने बोला कि माय हस्बैंड वाज नॉट एमिएबल व्हेन ही वाज अनमैरिड, बट नाउ ही इज एमिएबल। तो इट्स गुड। मतलब उसमें ये होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं दे आर वेरी शाय, तो बहुत जल्दी सोसाइटी में मिक्सअप नहीं होते, बट ग्रेजुअली व्हेन द फैमिली इज देयर, तो फैमिली में आते हैं तो मिलनसार भी हो जाते हैं। ओके। यस मैम। तो आज आपने सारी अच्छी क्वालिटीज बताई हैं, जिसकी भी बताई हैं, मगर अब आप किसी की खराब क्वालिटीज मैंने लिखवाई थी वो भी बतानी। सारे अच्छे नहीं होते। अब सबने हीरो अपने पति को ही बताया है, तो नहीं मैम, फादर को भी बताया है। फादर को भी बताया है। तो कल आपने खराब क्वालिटीज भी बतानी है। ओके। ओके। अच्छा, अभी मैं किचन से ही रिलेटेड बातें कर रही हूँ। शायद टुडे इज द लास्ट डे फॉर किचन, फिर कल फिर शुरू करती हूँ। अच्छा, आपने कुछ बोला था मेरे को, सेंटेंसेस लिखे हैं आपने? हैव यू रिटन? एनी डाउट्स मैम? नहीं। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Just a minute. यस यस। हाउ टू से कि इंडिया के टाइम में और बाहर के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ यॉर्निंग डिफरेंस मत बोलना।
यार यॉर्निंग डिफरेंस मत बोलना। एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे फॉरेन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ना, स्टैंडर्ड टाइप का मतलब होता है पूरी दुनिया में एक ही घड़ी चलती है। आपके इंडिया का टाइम अलग है, अमेरिका का, कनाडा का, कोई 2 घंटे आगे, कोई 2 घंटे पीछे। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में वो क्लॉक्स लगी होती हैं, भाई ये कनाडा की है, ये अमेरिका की है, ये इंडिया की है, तो टाइमिंग्स में डिफरेंस होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसीलिए बनाया जाता है कि ऐसा हो। अब आपको मैं अपने हिसाब से बोल दूं कि 8 AM मेरी फ्लाइट 8 AM है। अब अमेरिका वाला अगर 3 घंटे पीछे है तो वो तो फिर 11 बजे ही पहुंचेगा ना। Yes, ma'am. समझ आ रही है? तो इसलिए हम लोग She said स्टैंडर्ड this टाइम रखते हैं। how to she said how to speak this sentence in English. मैं वही बोल रही हूँ ना, तो आप बोलिए there is lots of difference between the timings of India and whichever country she wants to say, but यहाँ पर yawning difference मत use करना, okay? हेलो, हमें कोई ऐसा टाइम लेना Yes. पड़ेगा जैसे आपको भी सूटेबल हो और हमें भी सूटेबल हो, ऐसा बोलना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको IST बोलते हैं, उसको Yes, ma'am. IST बोलते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, वो जो टाइम आप दोगे वो सबको सूटेबल होता है, एक सबको समझ आ जाता है। जो 24 आवर्स का होता है ना, 24 आवर्स की घड़ी होती है, Yes, ma'am. तो एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो सबको सूट करता है। मतलब जैसे आप दुबई में हो और वहां पर 11 बजे है, यहाँ पर 3 बजे है, तो आप मेरे को टाइम दोगे 3 बजे, आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से टाइम मिला लोगे कि मेरे 11 बजे हैं तो उधर इतने बजे होंगे। ओके, आप तो बाहर की क्लासेस लेते हो ना, तो टाइम कैसे सेट करते हो उनका? मैम उनसे पूछना पड़ता है हमें कि मतलब जैसे हाँ, तो अभी मैं यूएसए की क्लास ले रही हूँ, तो मैं रात को 9:30 बजे क्लास लेती हूँ, तो उनके सुबह के 9 बजते हैं। उनके तो सवेरे के 9 बजते हैं, आपके रात के। हाँ, तो उनसे पूछना वो पड़ता है कि IST से आपको बताएंगे ना, यस मैम, वो यस आपको मैम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताएंगे ना। यस मैम, इंटरनेशनल तो वो पूरी वर्ल्ड में एक जैसा होता है। ओके, ओके मैम। यस Ma'am, I want to know pronunciation of you gave the answer. I have washed and kept ladyfinger in colander. कोलैंडर, Colander. या Excuse me, ma'am. और कुछ पूछना है Yes, मैम? ma'am. Yes, ma'am. पूछिए। हिंदी सेंटेंस है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो he does not have a car. तो मैम does not और do not, वो कैसे पता चलेगा इसमें does है? ठीक है, he does not बट have a मुझे ये car। नहीं समझ आ रहा है, कभी कुछ सेंटेंस में do not भी आता है, कभी does not भी आता है, तो कैसे, कहाँ पे do लगाना है, कहाँ पे does? they do not have, they अगर प्लोरल आएगा they do not have a car, सिंगुलर आएगा he does not have a car। मीन सिंगुलर होगा तो does not आएगा, ठीक है, और प्लूरल होगा तो do not। they do not। ओके, नेक्स्ट। और कुछ? और दूसरा है मैम, हम सेब खाते हैं और चाय पीते हैं, तो वी ईट एप्पल्स एंड ड्रिंक टी। तो मुझे इस सेंटेंस में कभी कभी क्या है कि ड्रिंक्स भी आता है और कभी ईट्स भी आता है, तो कहाँ पे ईट्स लगाना है, एस लगता है, और कहाँ पे ड्रिंक ईट को खाना है, ईट को खाना है, ड्रिंक को पीना है। यस मैम, वो तो समझ आ गया, बट एस कभी कभी मैं एस लगा देती हूँ तो वो रॉन्ग आ जाता है ईट्स के बाद, कि ओनली ईट्स आएगा तो मैं मुझसे एस भी लग जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि एस लगाना है कि ओनली ईट लिखना है? सिंगुलर के साथ एस लगेगा, सिंगुलर के साथ एस। हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस जैसे लगेगा। नहीं आपको मैंने तो ये भेजा भी था, पास्ट सिंपल प्रेजेंट नहीं टेंस में मैम, भेजा था एक्चुअली मुझे वो समझ नहीं आया, ये तो मैम। मैं जब मैंने ऐप है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस कराया ना, देखिए राजू गोज टू मार्केट,
goes to market. Raju goes to market. They go to market. They go to market. Yes. तो ES जब सिंगुलर होता तभी आता है. Yes. अभी तो आपने पूछा डू और डज में फर्क, तो ES तभी आएगा ना, S या जो भी आएगा. जैसे राधा प्लेज, राधा प्लेज, ठीक है. चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, प्ले. तो बहुत सारे की राधा बात कर दे तो plays, only वर्ब S आएगा. नहीं आएगा, एस नहीं आएगा. S नहीं आएगा. सिंगुलर होगा तभी ओनली प्ले होगा तभी ठीक एस है? लगा सकते. हाँ जी, ठीक है. ओके मैम. He eats, they eat. Clear?